And as you see here, we get to learn from the residents. Actually, they are always in contact with us. They teaches us. The attending, the program director, we can actually talk and learn with them by personally. And we can actually attend their classes. The residents they teaches us. We can learn with them, and they are patients. We can ask our questions if you have any doubts. Let's say I saw a patient with PID yesterday only, pelvic inflammatory disease, and what are the causes, what are the treatments, why it's happening, हमको, like how will you diagnose it, everything. They literally explain you everything. It's very helpful for me. I personally find it very helpful for me, actually, and I'll prefer. Yes, Mr. thank you. Dahat, I want to make a comment, which is Yeah, very please. important. I just spoke momentarily about the Yeah. scholarly work project and the book that I'm writing now, the second edition. I have to say, Mohit is on the team of the writers, and he's an Yes. amazing young student. He's going to be an excellent physician. And I want you, Mohit, to please talk about your experience as you have joined us and the compendium team in writing that project. Please speak about that. It's very, very important. It's very nice. Actually, I saw Dr. Bharat at the hospital, and he was talking about his first book, The Neurodegenerative Disease, and I was very interested in the project, the book. You can, sorry. So I was very interested in the project, the book he was talking about, like he's going to write the second edition now. So I was very interested in that. I asked him, can I join him and everything? And he actually gave me the opportunity to join him. So I am one of the 6 students who is actually with him in the project. And I am doing my part in the drugs and neuropharm right now. And actually I'm talking about the diagrammatic illustration also. That's all in my hand. It's very nice learning opportunity you will have in your life, and I really it's very good. Yes, thank you, Mohit. Mohit. Available student may ask some question later in the lateral part. Right now we have Mrs. Priyam Sharma with us and Lalit Arora. Welcome, madam. Welcome, sir. Ma'am, you're mute. 1 second. Good evening to everybody. How are you guys? Yes. Good evening. Good evening. Yes, madam. Please address to the students and parents. Okay. What language should I go? Hindi or English? Hindi अच्छा रहेगा, madam. Hindi is better. अच्छा, ठीक है. नमस्कार. सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ. आप सब लोगों ने अपना समय निकाल कर यहाँ आए और मुझे आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे. कोरोना वायरस का इतना भय आजकल फैला हुआ है और खासकर अगर आप लोग सब महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में तो बहुत खराब हालत है. आप लोग संभल के रहिएगा. हम लोग अभी यहाँ पे पॉन्टिएक में मैं हूँ. यहाँ पे हम लोगों का बड़ा ही भारी काफी बुरी तरह यहाँ पे फैला हुआ था. काफी हम लोगों ने देखा लोगों को जीते हुए भी और मरते हुए भी. काफी खराब एक्सपीरियंस रहा कि कितनी बुरी बीमारी है ये. पर अब तो खत्म हो गया है यहाँ पे. तो हम लोगों ने झेल लिया. जो हमारे सेंट मार्टिनस के स्टूडेंट्स थे, कुछ स्टूडेंट्स ने उनमें बहुत ही अच्छा काम किया. कोई डर नहीं था उन बच्चों को. जब डॉक्टर बनने वाले हैं बच्चे तो उन्हें आगे बढ़ के काफी. ये बताइए कि आप, मेरे ख्याल से बेहतर ये रहेगा कि हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से आगे बढ़ें. मैं कुछ आप लोगों जो कुछ भी आपको पता करना है दाहत साहब ने बता ही दिया होगा. दाहत साहब आ चुके हैं, दोनों जगह देख चुके हैं अच्छी तरह. अब आप लोग के जो प्रश्न है आप वो पूछिए तो मैं उनका उत्तर दे सकूं. Yes, madam. Thank you very much. I think we need to start question answer session. Pandey sir, I think you have the questions and I will ask student to ask question. They can ask directly, maybe in English or Hindi.
Madam is there, Lalit sir is there, Dr. Barata is there, and all our students, those are studying at Contact General Hospital, and those are doing residency, and the students, those are studying in St. Martinus University, Curaçao, all are available. So whatever question you are having, जो भी सवाल आपको पूछना है, आप पूछ सकते हो. Yes, please, one by one you can start. अगर आपको पूछना नहीं है तो आप टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में. पांडे सर, आपके पास कुछ नाम आए हैं, आप प्लीज बता दीजिए. सर अनम्यूट कर लीजिए. सुशील जी. Yeah, sir, I'm online. Yeah, am I audible? Yes, yes, you Hello. are. Yeah. Ma'am, my question is to you, ma'am. This is regarding, ma'am, registration process that you will be adopting in the current pandemic situation. So you might be knowing that NEET exam is going to be held on the end of July, and result is likely to be declared in August. And students' visa processing and all may likely be done in the September, I think. So it might take students to reach to your university maybe at the end of September. So how you are planning to accommodate these students in the current situation? I mean, this is all uncertainty ki whether flights may be operational, whether things will be normal, things will be smooth. So this is all uncertain situation. So how you are planning to accommodate in the given situation to the students? Okay, Lalit sir, I think you can answer this question better than I can. Please Yeah, take sure. this. ओके सो देखिए सर, ऐसा है कि अभी जिस तरीके से चल रहा है कि हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस तरह की कोई सिचुएशन होगी और हम इस सिचुएशन में होंगे कि हमें पता करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं. तो अभी जो है ऑनलाइन क्लासेज सारी चल रही हैं, और जिसमें जो है बच्चे जैसे अभी कैंपस में होते थे तो असाइनमेंट्स करते थे, क्विजेस करते थे, एग्जाम्स होते थे, तो वही सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई है ऑनलाइन. तो स्टूडेंट्स चाहे घर पे हैं या वो कहीं पर भी हैं या कहीं पर स्टक है, फॉर एग्जांपल कुरासाओ में है, कुछ लोग हैं अमेरिका में हैं, कुछ लोग अपने इंडिया में घर पे हैं या घर पे नहीं पहुंच पाए हैं, कहीं अपने रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो ऑल दे नीड इज इंटरनेट. इंटरनेट के अगर उनके पास अवेलेबिलिटी है तो वहां पर जो उनकी डेली क्लासेस थी उनका वही स्केड्यूल रहता है. जैसे उनको क्विजेस होती हैं वही उनको क्विजेस लेनी होती हैं, असाइनमेंट्स उनको सबमिट करने होते हैं विद डेट एंड टाइम जो भी उनको दिया जाता है, डिफरेंट टॉपिक्स जिस भी सब्जेक्ट्स में, जैसे एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं उसमें. और अभी जो है हम नई टीचिंग टेक्निक्स भी इसमें बहुत इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसमें कि ज्यादा इंटरनेट की आपको जरूरत नहीं है, एक बेसिक इंटरनेट कनेक्शन से आप अपना पढ़ सकते हैं. तो बहुत सारी चीजें जो हैं इम्प्लीमेंट हमने कर दी हैं, जाकि ये जो लाइव क्लासरूम वाला जो एक्सपीरियंस है उसको किस तरीके से हम उसको फिल अप करें, किस तरीके से उसको हम कॉम्पनसेट करें, ताकि ये जो लाइव क्लासेस जब तक नहीं होती है तब तक बच्चों की एजुकेशन ना रुके. देखिए ऐसा है सर, टू फर्दर एनहांस ऑन व्हाट ललित सर हैज सेड, सारी दुनिया ही आज वर्चुअली पढ़ रही है. अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन में हम आ गए हैं आज. तो जब तक बच्चे का वीसा वगैरह नहीं होगा हम एजुकेशन बच्चे की रोकेंगे नहीं, हम शुरू कर देंगे. और देखिए अभी तो ये अनसर्टेनिटी है कि सितंबर में भी बच्चे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो हम क्लासेस नहीं शुरू करेंगे. ज्यादा से ज्यादा बच्चा 1-1.5 दिन की क्लास मिस करेगा जब वो ट्रैवल कर रहा होगा, तो उसके अलावा क्लास मिस नहीं होगी. और जो क्लास मिस करेगा उसको हम मेकअप क्लास दे दी जाएंगी. तो दैट इज व्हाट द प्लान इज. Yeah, thank you, madam. I hope satisfactory answer you got. इसमें दो बात और मैं बताना चाहूँगा कि सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ है, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ भी है, जो बाकी कोर्सेज के लिए बच्चे यूजी और पीजी के लिए जा रहे हैं, तो उनकी ये भी तैयारी है कि भाई हम फ्लाइट भेज के बच्चों को हम लेके जाएंगे हमारे, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ बंद नहीं रख सकते हैं. या तो अगर वर्स्ट सिनेरियो में इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुलती नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स फ्लाइट यहाँ से वहाँ लेके जाना ये कोई एक कंट्री के हाथ में नहीं है, दोनों कंट्रियों की परमिशन चाहिए.
तो यहाँ पे कैसी सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। जो बच्चे आपके साथ है आज, वो सारे ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज ले रहे हैं। इंडिया में होके भी उनका कुछ ब्रेक नहीं है और क्लासेस चल रही है। वैसे ही जब तक इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं खुलेगी, बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कुरासाओ खुल गया है, उनका इमिग्रेशन प्रोसेस में जो टाइम लगता है 2 महीने का 3 महीने का, वो इमिग्रेशन प्रोसेस उनकी चालू हो जाएगी अगर उनके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो क्लासेस यहाँ चालू रहेंगे और इमिग्रेशन प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली शुरू हो जाएगी। यहाँ पे VFS भी अभी खुलने वाला है, एम्बेसीज भी खुल जाएगी, तो उनका वीजा भी लग जाएगा, शिप फ्लाइट खुलेगा, नेक्स्ट डे बच्चा फ्लाई करके कुरासाओ पहुंच सकता है एंड ही कैन स्टार्ट लर्निंग। अभी आज की न्यूज है, ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। मोस्टली मेडिसिन दे आर गोइंग टू इन्वेंट एंड इट विल बी इन मार्केट वेरी सून, मे बी इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर। तो पढ़ाई को तो रोका नहीं जा सकता है, सो दैट्स द रीजन ये डिसीजन यूनिवर्सिटी ने लिया है कि मीनवाइल विल डिलीवर ऑनलाइन प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, next I invite Vinod Rathod. Vinod, are you there? He's on a mute, I think. He's का माइक अनम्यूट करना पड़ेगा सर, इनका माइक जो है वो म्यूट है। अच्छा, विनोद राठौड़। विनोद जी पूछिएगा, आपका सवाल पूछिएगा। विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो हेलो। हाँ, बात कीजिए अभी। हाँ सर, आ रही है आवाज? हाँ, आ रही, आप बात कीजिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, इंडिया, अकोला। सर जब आप बच्चे वहाँ पे डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब इंडिया लौटेंगे तो उनके लिए ऐसी कोई टेस्ट या ऐसी कोई एग्जाम उनको पास आउट करना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे वो आकर सर्विस दे सके या कोई जॉब कर सके? सर मैं इस सवाल का जवाब दूं सूरत का? यस सर, यस। ऐसा है विनोद जी कि सेंट मार्टिन्स यूनिवर्सिटी जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, पहली बात। तो बच्चे जो इंडिया से पढ़ने जाते हैं सेंट मार्टिन्स यूनिवर्सिटी में, उनकी डिग्री जो है इंडिया में वैलिड है, पहली बात। तो उसके लिए आपको जो पहला जवाब है, आपको पता होना चाहिए कि वो वैलिड है कि नहीं है, वो डिग्री वैलिड होगी। दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए और पेरेंट्स को भी पता होनी चाहिए कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है 5 कंट्रीज की पीजी जो है वो अप्रूव करती है, कि यूएस, यूके, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको पढ़ाते हैं उनकी पीजी कराने के लिए अमेरिका में। तो अगर लगता है कि उनको अपनी स्पेशलाइजेशन, जैसे अगर सर्जरी करना चाहते हैं यहाँ पे, है ना, और पीडियाट्रिक्स करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं जिससे कि आगे उनको स्पेशलाइजेशन मिल जाए, और उसके बाद अगर वो इंडिया वापस आना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन्हें वो एमसीए का स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं करना पड़ेगा। बट अगर लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो सिर्फ एमबीबीएस खत्म करके करना चाहते हैं और वापस आते हैं, तो उनको लिखना पड़ता है, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है बाहर से, इन 5 कंट्रीज से। ऐसा है राठौर साहब, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, ये डॉक्टरी की पढ़ाई बड़ी सीरियस पढ़ाई है, आपकी और हमारी जिंदगी का सवाल है ना। तो हर एक जिस भी कंट्री में बच्चा जाएगा, वो ये कंट्री चाहेगी कि भाई जो तुम पढ़ के आए हो तुम काबिल हो कि नहीं हो। तो देखिए, बच्चे कई जगह रशिया वगैरह से मैंने सुना है पढ़ के आते हैं, चाइना से जो पढ़ के आते हैं, उसमें से 4% बच्चा इम्तिहान पास कर पाता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता।
हमारे यहाँ के नहीं बच्चे है। को हम इतना काबिल बना देते हैं कि आप उससे कोई भी इम्तिहान दिलवा लीजिए, वो बच्चा पास होगा। तो हमारे Means को they have to face. हम ये नहीं चाहते हैं कि ये क्या बच्चे को इम्तिहान देना पड़ेगा। हम कहते हैं भैया इम्तिहान लीजिए आप इस बच्चे का, ताकि हमारा बच्चा ये सिद्ध कर सके कि वो कितना होशियार है। तो उसकी चिंता हमें नहीं है। Okay. Means another question is that in the last lecture you told, sir, that if you invest your money for UG, then you can achieve, you can I think आप वो PG में मिला सकते हो, वो कैसा? जी हाँ, बिल्कुल बोला था, और वैसे ही है जैसे कि हमने बोला था कि आपको जो $55,000 भरने हैं, ये 5 इंस्टॉलमेंट में भरने हैं, और ये जो है आपको 4.5 साल की पढ़ाई के लिए भरना है। 4.5 साल के बाद जब बच्चा पीजी करने जाता है, मतलब रेसिडेंसी करने जाता है, तो उसको स्टाइपेंड मिलता है। सो $50,000 पर ईयर स्टाइपेंड मिलता है जी। तो अगर आप 3 साल का पीजी अगर पकड़ लो तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हो, ठीक है। सो 50,000 इंटू मतलब 1.5 लाख के करीब डॉलर उसको मिल जाते हैं, एंड वो बच्चा भर रहा है 55,000, ठीक है। 1.5 लाख रिटर्न मिल रहे हैं उसको 3 साल में, तो इट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने बोला था, दैट इज ट्रू। मैडम आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही आंकड़े दिए हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी क्विक एक्चुअली। और देखिए पीजी करना भी बच्चे की पीजी की डिग्री भी मिल जाती है, दोनों बात हो जाती है एक साथ। Means it is compulsory to complete the PG. देखिए कंपलसरी तो सर कुछ भी नहीं है। कंपलसरी तो बच्चे को 12वीं क्लास भी पढ़ना नहीं है, ये तो आपकी इच्छा और आपकी क्षमता पर है। Okay. Okay. जब Another बच्चे question. पढ़े गए तो पढ़ ले। हम तो चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा पढ़ जाएं। राठौड़ जी, मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए कैसा है, MBBS इज अ बैचलर डिग्री, बराबर है, और हर कोई बच्चा मास्टर्स करना चाहता है। और इंडिया में जो है करीबन 1,30,000 बच्चे पीजी नीट को बैठते हैं एवरी ईयर, और 13,000 सीटें हैं। मतलब 90% बच्चों को यहाँ पे जो मास्टर्स के लिए एडमिशन नहीं मिलती है। ओके, तो इसके लिए बच्चे चाहते हैं कि भाई हमें बाहर जाना है। इवन इंडिया में MBBS करके या रशिया, चाइना, फिलीपीन में MBBS करके बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमें US जाना है पीजी करने के लिए, और वो पीजी के प्रोग्राम की कॉस्ट जो है $1 लाख से भी जाता है सिर्फ 18 महीने की। मतलब आपके इतने साल जाने के बाद आपको $1 लाख से ज्यादा भर के फिर आपको वो सारा 3 साल करना है। 3-4 साल चले जाते हैं उसमें। सो दैट्स द रीजन, अगर बच्चा पीजी कर ले तो वो बेनिफिशियल है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। उसके साथ साथ उसके लिए डोर्स ओपन हो जाते हैं। उसको इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है, यूके में कर सकता है, यूएस में कर सकता है, मल्टीपल कंट्री में वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये सारी बातें मतलब ये एडवांटेजेस है। इसके लिए हम चाहते हैं कि बच्चों को जो भी एक करियर कंसल्टेशन हम दे सके, और जितने ज्यादा एडवांटेजेस उसको मिल सकेंगे वो अच्छा है हमारे लिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आपके इधर आप जो महाराष्ट्र के रीजन से आते हो, महाराष्ट्र स्टेट से, तो ऐसी कोई कैटेगरी डिपेंड ऑन कोई स्कॉलरशिप वगैरह कुछ है? इज देयर एनी स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट लर्निंग फॉर UG और PG? इज देयर एनी चांस फॉर देम एनी स्कॉलरशिप? जी ऐसा है सर विनोद जी। स्कॉलरशिप जो है अभी जैसे ये सेंटर्स खुलने शुरू होते हैं, हम हर सिटी में स्कॉलरशिप करते हैं बच्चों के लिए। और इसमें जो स्कॉलरशिप्स हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन होता है तब 1 से 10 लाख तक की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं बच्चों को। एक ये उनके लिए कोई अलग सिलेबस नहीं होता। जो ये बच्चे नीट के लिए एग्जाम तैयार करते हैं वही सेम सिलेबस होता है, और उसी में ही 1 घंटे का एग्जाम होता है, जो कि जो वहाँ पे सेंटर हेड हैं और जिस तरीके से रिकॉर्ड करके वो यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, और उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉनिकली ये सारे एग्जाम्स चेक होते हैं, और उसके रिजल्ट्स जो है 2-1 दिन के अंदर वापस आपके मिल जाते हैं कि उसमें कितनी आपकी स्कॉलरशिप आई है, कितने रिजल्ट्स मिले हैं। और उसके बाद और भी ऑनगोइंग स्कॉलरशिप है जिसमें कि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और आगे
जो अमेरिका का लाइसेंसिंग एग्जाम है वो पास करते हैं अच्छे नंबरों से, तो उनको उसके बेस पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों के लिए। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, सबसे बड़ी स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती है कि इंडियन सिटीजन जो हैं उनको जो है सबसे पहली स्कॉलरशिप ये मिलती है कि जो पूरा फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर जो टोटल स्ट्रक्चर है लगभग 60 लाख के आसपास आता है, 60 या 62 लाख ऐसे कुछ है। तो उसमें उन बच्चों को 40% ऑलरेडी उनको स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रेसिडेंट है यहाँ के वो है IIT रुड़की से पढ़े हुए, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है इंडियन बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल उन्होंने फीस रखी हुई है, बहुत कम फीस में जो है वहां पे, जिसमें कि मिनिमम फीस जो इंडियन बच्चों के लिए कर सकते हैं जिस बेस पे उनको पढ़ाया जा सके वो फीस रखी हुई है। और उसपे उन बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होता है कि उसमें जो ट्रेनिंग मिलती है, सारे अमेरिका से प्रोफेसर्स हैं वो आए हैं या अमेरिका में पढ़े हुए हैं या अमेरिका के एग्जाम पास किए हुए हैं उन्होंने। उसके बाद बच्चे अमेरिका में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और अगर अमेरिका में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है उन सब चीजों में अगर किसी और तरीके से भेजा जाए। बट लेकिन उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर शर्मा है उन्होंने कि इंडियन बच्चों के लिए हम बहुत कम मिनिमम फीस रखेंगे, जिसमें कि ये हो कि जितना जो मिनिमम जो एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ उन पे निकल सके, बाकी इंडियन बच्चों के लिए एजुकेशन लगभग फ्री होनी चाहिए उसके सिर्फ जो एक्सपेंसेस के अलावा। तो इसीलिए बहुत कम उसका फीस स्ट्रक्चर है इंडियन बच्चों के लिए। हेलो सर, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम कंसेशन सर, आई एम सॉरी सर, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम कंसेशन इन द फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट। हाँ सर, मैक्सिमम कंसेशन जो है आपको 40% तो मिलता है लगभग 30 to 60 लाख, जैसे 60 लाख का है तो आपको वो 30 लाख मिलता है, लगभग 20-22 लाख तो आपके वहीं पे ही कम हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो टेस्ट होता है, अगर टेस्ट में भी आपको मिल गया जैसे लाख मिल गया, 2 लाख मिल गया, अगर बच्चे ने बहुत ही अच्छा कर दिया उसमें 90% में कर दिया तो बच्चों को 5 लाख 7 लाख 10 लाख तक मिले हैं। तो डिपेंड करता है कि वो स्कॉलरशिप टेस्ट में कैसा करते हैं। थैंक यू सर। जी यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अमृता बाराते। Hello, am I audible to all? Yes, please go ahead. My question is for Dr. Priyam Sharma ma'am. Ma'am, so far we have only one Pontiac General Hospital in Michigan. So in the coming future, there will be more hospital for PG and clinical rotations? Yes, ma'am, there will be. Very soon, in fact. Okay. Yeah. We are constantly looking for hospitals that can serve the need. So we, in fact, are very close to buying another one in the next month or so. Any duration, ma'am? What do you mean? No, I can. I'm sorry to interrupt. I think I can answer this question. We have one hospital, but लेकिन यहाँ पे काफी सारे जो मेडिकल सेंटर्स हैं और डॉक्टर्स के जो ऑफिसेस हैं, क्लिनिक्स हैं, उनसे अफिलिएटेड हैं। तो बच्चे जो हैं हॉस्पिटल में भी रोटेशन करते हैं, जितनी यहाँ पे इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो काफी सारी सर्विसेज तो यहाँ पर भी हैं। और उसके अलावा जैसे बच्चे कभी किसी चीज में इलेक्टिव्स करना चाहते हैं तो दूसरे मेडिकल सेंटर्स में जाते हैं जो कि पॉन्टिक जनरल हॉस्पिटल के साथ अफिलिएटेड है। उसके अलावा जो है, जो नई लोकेशंस खोलने वाली बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गोइंग टू डिफरेंट स्टेट्स। और दूसरी स्टेट्स में देखिए हम तभी जाना शुरू करेंगे जब हमें पता चलेगा कि हमारे पास बच्चों के लिए हाउसिंग करना आसान है और उनके लिए जो गाइड करना उनको आसान है, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को इस तरीके से नहीं भेजा जा सकता। यहाँ पर जो है हमारे पास पूरा स्टाफ है, अपार्टमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, हेल्प करने के लिए सब कुछ है। क्योंकि अब देखिए कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि एक अननोन लोकेशन पे भेज दिया जाए जस्ट बिकॉज कि वहाँ का नाम बहुत अच्छा है। कैलिफोर्निया बहुत अच्छा लगता है हमें सुनना, कैलिफोर्निया में बच्चा तलब जाएगा, पर वहाँ पे हॉस्पिटल में जाना है, किससे बात करनी है, क्या करना है, उसके खाने का क्या करना है, आना जाना वहाँ पे कैसा है, रहने का कैसा है, सेफ्टी कहाँ पे कैसी है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो ये अरेंजमेंट करने के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद बहुत बड़ी फिर टीम चाहिए होती है। तो लोकेशन ओपन करना इज अ वेरी बिग डील। अगर कोई कहता है कि यस नियर फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी होंगे और बिकॉज वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, बट लेकिन एक चीज ये है कि जो आप वहीं पे भेजना चाहेंगे जहाँ पे कि आपको पता है कि भाई स्कूल में प्रॉपर टीम है, स्टाफ है, कोऑर्डिनेटर्स है। वहाँ पे अमेरिका में जो बच्चे होते हैं बहुत
इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको तो आप कहीं भी भेज दोगे क्योंकि उनको यहाँ के बारे में पता है कि कहाँ चीजें कैसी करनी है, तो वो लोग तो चले जाएंगे, लोकेशंस फिर भी खुल जाएंगी। अगर जैसे वहाँ पे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे 25-50 बच्चे जो है हिंदुस्तान से जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे इन सब चीजों की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जा सकती है। Okay, sir. Thanks a lot, ma'am. Sure, you're welcome, ma'am. Next question, Gauri Karai. Gauri, please go ahead. Gauri? Gauri, are you there? शायद से नहीं है सर। नेक्स्ट वन। Okay, Ullas Chavan. Ullas? म्यूट आहे, म्यूट अनम्यूट करायला सांगा. ते पिल्लू एक काय केलं का तू? हाँ, यस, नाउ यू कैन. हॅलो हॅलो, यस आता ते आलं होतं ना. हाँ सर, आप कीजिए उल्लास बात, जी, बोला, सुन रहे हैं हम बोला. लोग. हॅलो. हाँ जी, बात कीजिए. आप पूछ सकते हैं. हाँ, गुड इवनिंग सर. यस, गुड इवनिंग. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो अब कैलिफोर्निया अमेरिका में जो बच्चे पढ़ने को जाएंगे, हेलो, सुनने में आ रहा है ना सर? हाँ जी. हाँ, बोलिए. वो वहाँ पे जो हॉस्टल है और जो रहने के लिए जो वहाँ पे प्रबंध है, वो इंडियन रहेगा, वहाँ पे इंडियन लड़के ही रहेंगे कि और भी हॉस्टल में दूसरे भी लड़के रहेंगे? और दूसरी बात यह है सर जी कि एजुकेशनल लोन मिल सकता है क्या? बिल्कुल 100% मिल सकता है सर. 100%. काफी लोगों को मिला है और काफी लोग लोन अवेल करके गए हैं पढ़ने के लिए. मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. और जो हॉस्टल है वहाँ पे, जो अगर एडमिशन अपन ने ले लिया उधर अमेरिका में, यूएसए में, तो वहाँ पे हॉस्टल इंडियंस हॉस्टल रहेगी कि कॉमन रहेगी? पूरे अपने इधर के बच्चे रहेंगे ना उधर? जी सर. पहले मैं क्लियर करता हूँ, ये जो है कैलिफोर्निया में नहीं है. पहले जो है कुरासाओ में बच्चे जाते हैं. कुरासाओ एक अलग कंट्री है जो कि अमेरिका में नहीं है, कैरेबियन कंट्री है. कैरेबियन, जाके 2.5 साल बच्चे पढ़ेंगे. यहाँ पे इंडियन हॉस्टल है, इंडियन फूड अवेलेबल है और मोस्टली इंडियन बच्चे ही रहते हैं. एक आध दूसरा अगर कोई दूसरे कंट्री का रहेगा, बट मोस्टली स्टूडेंट जो है इंडियन ही रहते हैं. ठीक है. और जब अमेरिका में बच्चे जाते हैं 2.5 साल के बाद, वहाँ पे भी हाउसिंग जो है वो अवेलेबल है. लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में मैं बोलूंगा, अपना ललित सर जी ज्यादा कुछ बात कर सकते हैं. ललित सर प्लीज. जी, ऐसा है कि जो यहाँ पर मिशिगन में अपार्टमेंट्स हैं, ये हॉस्पिटल के अपार्टमेंट्स हैं और इसमें इंडियन बच्चे रहते हैं और साथ में रहते हैं. और इनका जो मैं आपको थोड़ा सा मैं स्केड्यूल भी बताया था ताकि आपको, मैं काम करता हूँ, मैं मोहित को बताता हूँ. मोहित जो है वो यहाँ से राजस्थान से हैं, तो आपको वो अच्छे से बता पाएंगे. और यहाँ पे इंडियन बच्चे किस तरीके से रहते हैं वो थोड़ा सा बता भी पाएंगे इस बारे में. तो मोहित. जी सर. हाँ, यहाँ पे अपने हॉस्पिटल के अपार्टमेंट्स हैं. लाइक दे आर सो, हर अपार्टमेंट मोहित हिंदी में बोलो. जी, हर अपार्टमेंट में अपने पास 3 पर्सनल रूम्स मिलते हैं. हर एक बच्चे को एक रूम मिलता है. They can use their personal rooms and they can like they are वहाँ पे अलग अलग अपार्टमेंट है. तो आप जैसे गर्ल्स के साथ रह सकती है, बॉयज के साथ ही रह सकते हैं. तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. पर यहाँ पे मेजरली इंडियन स्टूडेंट ही हैं, तो आसपास आपने अपने को सपोर्ट वगैरह भी रहता है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती. एंड यू नो एवरीबॉडी अराउंड यू, हम सबको जानते हैं अपन, आसपास अपने क्लास के बच्चे हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हमारे पास अगर उसके बाद
कुरासाओ में जो हाँ बच्चे रहते हैं वो भी है। मैं सर्वेश को बोलता हूँ। सर्वेश आपको कुरासाओ के हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बता देंगे। सर्वेश प्लीज। हाँ यस सर। कुरासाओ में अपना जो हॉस्टल है उधर भी जैसे मोहित मोहित ने कहा कि अलग अलग रूम्स होते हैं, तो उधर भी कुरासाओ में भी अलग अलग रूम्स होते हैं। गर्ल्स के लिए अलग रूम्स होते हैं, बॉयज के लिए अलग रूम्स होते हैं। और एक बॉयज के रूम में मैं मेरे रूम के बारे में बता रही हूँ, तो 4 लोग रहते हैं एक रूम में। 4 से 6 का अकोमोडेशन होता है। 6 वाला रूम बड़ा वाला रूम होता है, वो तो आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। मतलब मेरा रूम 4 का रूम है। या फिर आपको अगर अकेला रहना है, आप एक आदमी वाला रूम ले सकते हैं। आपको 2 जन के साथ रहना है तो आप 2 वाला रूम ले सकते हैं। कुछ कुछ अलग रूम से जिसमें 3 लोग भी रह सकते हैं। तो वो अलग अलग प्लान है, लेकिन अलग अलग रूम से, और हर रूम स्पेशियस है। और सब अपने इंडियन, मतलब अभी तो सब इंडियंस ही है हॉस्टल में रहने वाले, और सबके साथ सब जान पहचान हो जा सकती है। और मोस्टली सब हिंदी में बात कर लेते हैं, इंग्लिश में बात कर लेते हैं, तो लैंग्वेज का इशू नहीं आता कुछ। और इंडियन फूड मिल जाता है रोज। सुबह का लंच और रात का डिनर दोनों इंडियन फूड मिल जाता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इंडियन फूड को। सर्वेश, रूम में जो हॉस्टल है उसके रूम में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड किया हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिएगा। ओके, तो एक रूम में, अब मेरे रूम में हम 4 लोग हैं, तो मेरे को मेरा खुद का बेड मिला है। बंकर बेड अपन जिसको बोलते हैं, ऊपर एक नीचे वाला होता है, वैसे मेरे को खुद का एक बेड मिला है। उसके बाद मेरे को एक खुद का क्लोजेट मिला है, जिसमें मैं मेरी बुक्स है या फिर क्लोथ्स है वो सब रख सकता हूँ। हमारे रूम के लिए हमें एक रेफ्रिजरेटर मिला है, ताकि हम जो भी सुपरमार्केट से वगैरह सामान लाए वो हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। या अपन बोल सकते हैं मिल्क हो गया या फिर स्नैक्स हो गए, जो भी अपन को फ्रिज में रखना है अपन फ्रिज में रख सकते हैं। अब वो फ्रिज होता है। अपने हमारे रूम में एसी है, तो पंखे की जरूरत नहीं। वहाँ पे क्लाइमेट कैसे भी चेंज हो जाए, अपने रूम में तो ठंडा ही रह सकता है। और बताया जाए तो स्पेशियस में पहली बात, मतलब स्पेस का कोई इशू नहीं आता स्टूडेंट्स को कि बहुत छोटा रूम है या फिर बहुत बड़ा रूम है, या फिर झगड़े वगैरह से कुछ होते नहीं, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी स्पेस मिल जाती है। हर एक को अपना एक टेबल मिल जाता है, जिसपे अपन स्टडी करने के लिए स्टडी टेबल यूज कर सकते हैं। अगर रूम में स्टडी नहीं करना तो अपना स्कूल का लाइब्रेरी है ग्राउंड फ्लोर पे, तो अपन उधर जाके एक डेस्क पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं। लाइब्रेरी बहुत स्पेशियस है, एसी है, तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं आता कंफर्ट का। प्रॉपर कंफर्टेबल लाइब्रेरी है अपने पास। या थैंक यू सर्वेश। गर्ल्स अकोमोडेशन के बारे में भी काफी लोग सवाल पूछते हैं। दीक्षिता, आप बताओगे गर्ल्स हॉस्टल के बारे में और कैसी फैसिलिटी और सेफ्टी के बारे में? अच्छा सर, मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहता हूँ फॉर अ सेकंड। डॉक्टर उमेश पांडे जो है इंडिया से हैं, जिन्होंने कि यहाँ पे सेंट मार्टिन्स यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा है, और आप यहाँ पे पॉन्टिक जनरल हॉस्पिटल में रेजिडेंट फिजिशियन है, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं, या जो भी लोग उनसे मिलना चाहें या बात करना चाहें वो कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर पांडे जिन्होंने की रेसिडेंस है, जो पीजी हम बोलते हैं वो कर रहे हैं, तो आपको अगर उनके बारे में भी कुछ सवाल पूछने हैं, सो पीजी कैसे होता है, रेसिडेंसी क्या होता है, क्या एडवांटेजेस है, तो ये आप सवाल पूछ सकते हैं इन द लेटरल पार्ट। दीक्षिता, प्लीज गो अहेड विद द हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर गर्ल एंड सेफ्टी ऑफ द गर्ल। For the rooms, girls के लिए बहुत safe place है, because it's we can say it's safe like boys. There are many rooms for the girls. We have AC, refrigerators भी है. फिर there's no worry that we can say there is a security guard who comes at night, and boys also cannot enter the girls' room, or girls cannot enter the boys' room, and it's really very safe for girls. Yes, thank you. थैंक यू दीक्षिता। और किसी को कुछ सवाल पूछना है इस बारे में? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ललित सर, आप बोल रहे थे डॉक्टर पांडे आए हैं, बराबर? जी, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो मॉर्निंग में मीटिंग में थे। उनकी एक मॉर्निंग मीटिंग होती है जो फ्लोर पे होते हैं सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स और अटेंडिंग फिजिशियंस के साथ। अभी वो फिनिश करा है उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को भी मैसेज किया कि वो ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग। ठीक है, ठीक है, जैसे ज्वाइन करेंगे हम वेलकम करेंगे उनका। मीनवाइल विल गो अहेड विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। सर पांडे सर, प्लीज। So yeah. Shyam Jadhav. Shyam, please go ahead with your question. Shyam.
Sham, are you there? विनोद राठौड़, उल्लास Next चौहान, question, sir. श्याम जाधव. Okay. Karuna More. Karuna, please go ahead with your question. Karuna, are you there? आई से नहीं थे, दिक्कत नहीं है। ती पण नाही दिसत. Okay. Okay. Next, Dr. Pramod Deshmukh. Dr. Pramod Deshmukh. ते पण नाही येत. Okay. Lande ji. नहीं है सर. Okay. Mr. Shobhane. शोभणे पण नाहीये. नॉट अवेलेबल. ओके. इसके अलावा आप किसी को भी पूछना आहे, कोणालाही प्रश्न विचारायचे असेल तर तुम्ही अनम्यूट करून प्रश्न विचारू शकता. ज्यांचे नाव माझ्याकडे आले होते ते सगळं मी घेतलेलं आहे. सबका नाम मैंने लिया है जिन्होंने मुझे या किसी को पूछना है तो प्लीज. हाँ, मैं पूछता हूँ सर. ये जो अभी आपका नाम सर? मैं डॉक्टर अनिल कुल्ले, प्रोफेसर ऑफ एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में. सर प्लीज गो अहेड. मुझे एक पूछना है, ये जो बच्चों ने अभी एक्सपीरियंसेस बताए हैं हॉस्टल के वगैरह वगैरह, है ना, तो इसके अलावा भी वहाँ कुछ रिक्रिएशन फैसिलिटी या बाकी स्पोर्ट्स वगैरह के बाकी अदर एक्टिविटी वगैरह कुछ अरेंजमेंट है वहाँ? क्योंकि बच्चे पढ़ाई करेंगे कुछ तो उसमें से कुछ स्पोर्ट्स या बाकी चीज़ों में थोड़ा ये लगाएंगे तो और उनका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा. तो उसके बारे में कुछ फैसिलिटी है क्या वहाँ? जी बिल्कुल. सर्वेश, मेरे ख्याल से सर्वेश जो है यहाँ पे इसमें SGA का जो यहाँ पे स्टूडेंट गवर्नमेंट एसोसिएशन है उसका पार्ट भी रह चुका है. तो मेरे ख्याल से सर्वेश आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे. एंड ही इज अ स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग देयर एज वेल. ओके, सो जैसे आपने कहा कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे तो और भी ज्यादा बच्चे करना चाहिए चीजें, तो ऑफकोर्स करना चाहिए. तो ये सब चीजें हैंडल करने के लिए हमारे पास एक स्टूडेंट बॉडी है. ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करने के लिए या फिर कोई इवेंट प्लान करने के लिए काम करती है. पूरी स्टूडेंट बॉडी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का तो तेरे को हैगा नोनो फोन पे एक मिनट ਦਾ फोन ਆਇਆ सरफराज ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ. ओके, सो ये स्टूडेंट बॉडी का नाम है स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टूडेंट गवर्नमेंट एसोसिएशन, जिसको अपन SGA बोलते हैं. करंटली SGA का वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ. तो हम क्या करते हैं, तो इंडियन बच्चे हैं तो हम क्या करते हैं, इंडियन फेस्टिवल्स है या फिर इंडियन इवेंट्स होते हैं तो हम वो टाइम पे कॉलेज के साथ या फिर अपने एडमिशन के प्रोफेसर के साथ बात करके बच्चों के लिए क्या इवेंट किया जाए इसके हिसाब से बात करते हैं. हमारी पूरी टीम होती है, पूरे स्टूडेंट्स की टीम होती है, ताकि सब स्टूडेंट्स मिलकर डिसाइड करें कि क्या करना है. फॉर एग्जांपल हमारे वीकेंड्स में या फिर वीक जब भी छुट्टी हो तब हमारे स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है. फॉर एग्जांपल क्रिकेट कंपटीशन होता है, फुटबॉल कंपटीशन होता है, वॉलीबॉल कंपटीशन होता है. और प्लस हमारे यूनिवर्सिटी में कुरसाओ कैंपस में जिम अवेलेबल है, तो जो लोग फिटनेस के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं उन लोग को भी जिम अवेलेबल है. वो भी पूरा स्टूडेंट बॉडी हैंडल करती है. मतलब जिम का भी सुपरवाइजर जो होता है वो एक स्टूडेंट ही होता है. तो मिनिमल एडमिनिस्ट्रेशन का इधर कम से कम कॉन्टेक्ट होता है. पूरा स्टूडेंट्स हैंडल करते हैं ये सब. ऑफकोर्स एडमिनिस्ट्रेशन इज द अपर बॉडी फॉर दिस, बट स्टूडेंट्स हैंडल ऑल द सिचुएशंस बाय देमसेल्फ. स्टूडेंट टेक डिसीजंस, नॉट डिसीजन, स्टूडेंट्स मेक सजेशंस. तो हमारी जो सेंट्रल बॉडी होती है SGA की, तो वो अपने स्टूडेंट्स के जो सजेशंस है या फिर जो क्वेरीज है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेके जाते हैं. या फिर मतलब जो कोई इवेंट करना है, फॉर एग्जांपल दिवाली हो गया, दिवाली में कुछ इवेंट करना है, मतलब अभी नाच गाने का प्रोग्राम हो गया, फिर खाने का कुछ प्रोग्राम हो गया, तो वो हम टीचर्स के तरफ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी है
उनकी इधर हम लेके जाते हैं कि बाबा स्टूडेंट्स का ऐसा कंसर्न है, ये वीकेंड को हम लोग को ये करना है, लेकिन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एकदम फ्रेंडली है हम लोग को। सब इवेंट, नियरली ऑल ऑफ द इवेंट्स वी गॉट परमिशन फॉर डूइंग दैट। ऑफ कोर्स देयर आर सम लिमिटेशंस, बट स्टिल स्टूडेंट्स कितना एंजॉय कर सकते हैं। फिर जैसे हमारे लेक्चर्स होते हैं मंडे टू फ्राइडे एंड वी हैव हॉलीडेज ऑन सैटरडे एंड संडे, सो वी ट्राई आवर बेस्ट to maximize the student comfort on these 2 days. Of course, by studying also, we have to study on these 2 days because of the weekend. But we try, like last semester, we had 2 cricket tournaments, 2 soccer tournaments, and everyone enjoyed a lot. We have some girls tournament also. Girls play cricket. They sometimes play badminton. Whatever they want to play, they just make some suggestions that okay, हम लोग को ये खेलना है, तो हम जो स्टूडेंट बॉडी है वो रिक्वेस्ट करेगी एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई ये सब स्टूडेंट को चाहना है, मतलब ये सब स्टूडेंट चाहते हैं कि हम ये सब खेलना चाहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को कुछ लिमिटेशंस के साथ या फिर हम लोग का कंफर्ट देख के या फिर हम लोग का प्रेफरेंस देख के वो हम लोग को अलाउ करता है। पूरा सैटरडे संडे जो होता है वो पूरा स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। जब भी ऐसे इवेंट कुछ प्लान होता है तब स्टूडेंट्स को जैसा इवेंट वो चाहिए वैसा हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग बहुत सारे इवेंट हम लोग ने कैंपस के बाहर किए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरे इवेंट कैंपस के अंदर ही कर रहे हैं, क्योंकि हर रोज कैंपस में ही रह रहे हैं ऑफकोर्स। तो कैंपस के बाहर के भी इवेंट्स को हम लोग को परमिशन मिलती है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं ताकि सबकी सेफ्टी के लिए देखा जाए या फिर सबके प्रेफरेंस के हिसाब या फिर हर लिमिटेशन के साथ देखा जाए, तो थोड़ी बहुत सेफ्टी के लिए ऑफकोर्स, क्योंकि अलग कंट्री है, अपना इंडिया नहीं है या फिर अपना मुंबई नहीं है किधर भी 12 बजे तक घूम रहे, क्योंकि वहाँ के लोग को हम नहीं जानते या फिर सेफ्टी के कंसर्न्स के लिए हम लोग को लिमिटेशंस मिल जाती है कि समझो 8 बजे तक पहले अंदर आना है। लेकिन वो 8 बजे तक तुम लोग को जितना एंजॉय करना है अपन बाहर एंजॉय कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं, कॉलेज के अंदर इवेंट्स कर सकते हैं। तो वो पूरा स्टूडेंट बॉडी डिजाइन करते कि एक कैलेंडर बनता है हम लोग को सेमेस्टर के स्टार्ट में कि ये पूरा सेमेस्टर हम लोग को ऐसे इवेंट करना है, और वो कैलेंडर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेजेंट करते हैं। ऑफकोर्स वो कैलेंडर सिर्फ हम डिसाइड नहीं करते, वो पूरा स्टूडेंट बॉडी मिलकर डिसाइड करता है कि हम लोग को ये चाहिए, हम लोग को दिवाली में फंक्शन चाहिए या फिर हम लोग को होली में फंक्शन चाहिए, हम लोग को क्रिकेट टूर्नामेंट चाहिए, हम लोग को फुटबॉल टूर्नामेंट चाहिए, हम लोग को क्विज कॉम्पिटिशन चाहिए, या फिर हम लोग को नाच गाने का प्रोग्राम चाहिए, या फिर हम लोग को खाने में कुछ तो अलग चाहिए, ये आज दिवाली तो आज खाने में कुछ तो स्पेशल चाहिए। तो ये सब सजेशन या फिर ये सब स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट है वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के इधर लेके जाते हैं, और मोस्ट ऑफ देम, आई वुड से 95% ऑफ देम आर अलाउड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। We get permission or we get access to all these events. So students के लिए बहुत अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे, और सबकी लैंग्वेज बैरियर ज्यादा आता नहीं है, और सब एक साथ रह के घुल मिल जाते हैं। तो सब खेलना हो गया या फिर नाच गाना हो गया, तो सब एक साथ मिलके रहते हैं। तो स्टूडेंट्स का भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अपन जिसको बोलते हैं, फिर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स का अच्छा रहता है, स्टूडेंट्स का मेंटल स्टेट अच्छा रहता है इतना पढ़ने के बावजूद। ये जरूरी है, जरूरी। और एक दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, क्या इंस्टीट्यूट ये स्टडी टूर या एजुकेशनल टूर या फील्ड टूर वगैरह ऑर्गेनाइज करती है? कोई करिकुलम में ऐसा कुछ प्रोविजन है? यस, MD4 मतलब मैं अभी MD3 में हूँ, सेकंड ईयर MD3 थर्ड सेमेस्टर। MD4 में हमारे हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं, मतलब कुरसा में जो नियर बाय हॉस्पिटल्स है वहाँ पे हम स्टूडेंट्स के हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं ताकि उन लोग को इंट्रोडक्शन मिल जाए कि क्लिनिकल कैसे परफॉर्म किए जाते हैं या फिर क्या एक्सपेक्टेड है क्लिनिकल स्टूडेंट्स के पास से जो कॉन्टेक्ट में हमारे होने वाले हैं। तो ये सब इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग के पास ऑलरेडी, जैसे डॉक्टर बराटा ने बताया कि वी हैव ICM क्लासेस। ICM क्लासेस में हम लोग को प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है, और ये नॉलेज हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है क्लिनिकल रोटेशंस में। तो उसके लिए एक इंट्रोडक्शन बोल के हम लोग के हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं MD4 में। या इसका मतलब एजुकेशनल टूर या कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं उसमें, फील्ड टूर भी ऑर्गेनाइज होते हैं वीकेंड में या करिकुलम में, है ना? यस यस, अगर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करें तो हम लोग स्टूडेंट बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल टूर चाहिए या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिए, तो वैसा हम लोग को परमिशन मिल जाता है। अच्छा, वो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर करिकुलम, but you have to arrange separately as and when you require. Actually, all these are extracurricular activities. Curriculum is based on all the studies, but all these other things are extracurricular activities. These are based on how the students wish to pursue these activities, because all the students are not interested in doing these activities. Maybe some are interested in doing all these activities, some are not interested. So it depends on every student. So I don't think this should be included in the curriculum, but these all are, that's called as extracurricular activities.
रिसर्च टूर्स हो गए या फिर प्रोजेक्ट्स हो गए, आउटसाइड प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर हम लोग मेन जो हमारा एसजे अटेंड करता है वो होता है हेल्थ फेयर। हेल्थ फेयर में हम लोग क्या करते हैं, तो फ्री में कोई विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग स्टूडेंट्स जो है वो बाहर के पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उन लोग का सिंपल सिंपल फिजिकल प्रोसीजर्स जैसे हो गया ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड ग्लूकोज हो गया, ये सब सिंपल सिंपल चीजें हम लोग को उनके चेक करते हैं। उनके हिसाब से क्या होता है एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन उसका गोल क्या है कि स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो ब्लड प्रेशर क्लिनिकल रोटेशंस में लेना एक बहुत सिंपल चीज है, बहुत आम बात है, लेकिन मुझे या फिर कोई भी कुरासा में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट को जो अब तक क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट नहीं किया है, उसके लिए ब्लड प्रेशर आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर टेक्निक सीखना पड़ता है कि गलत की नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि पेशेंट के साथ हम लोग जब क्लिनिकल रोटेशन करेंगे तब हमें कुछ गलत नहीं करना है, क्योंकि तब हायर स्टेज है एक्चुअली एजुकेशन की। तो ये सब नॉलेज मिलने के लिए हम लोग ऐसे टूर्स अरेंज करते हैं, हेल्थ फेयर अरेंज करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है, और ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है, थैंक यू सर्वेश। थैंक यू सर्वेश, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन यू हैव गिवन, थैंक्स अ लॉट। हमारे साथ डॉक्टर उमेश पांडे भी जुड़े हुए हैं जो कि रेसिडेंट्स हैं एंड ही इज फ्रॉम कॉन्टैक्ट जनरल हॉस्पिटल। तो अगर आपको रेसिडेंसी के बारे में ये यूजी होने के बाद, मैं एक मिनट, मैं थोड़ा सॉरी मैं डिस्टर्ब करना चाहूंगा जी। अभी जो बच्चे पुरासों से अभी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं ना, तो एक दो जनों के उनके व्यूज उन्होंने बताए हैं, जो बाकी वाले जो स्टूडेंट है उनके भी 1 by 1 लिए तो अच्छा रहेगा, जैसा कि आपको टाइम मिले वैसे। हम पहले क्वेश्चन आंसर पूरे कर लेते हैं, हाँ ठीक है, बाकी बच्चे भी बात करेंगे जरूर। हाँ जी, मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में कुछ सवाल है। कुंदन, कैन यू गो अहेड विद दैट? Yes, sir. There are some questions. Is fees of USMLE included in overall fee structure? नहीं, इसकी जो यस सर प्लीज। ओके, जो इसकी यूएसएमएलई की प्रिपरेशन की जो फीस है वो इसमें इंक्लूडेड है, बट लेकिन जो एग्जाम लेते हैं, जो थर्ड पार्टी एग्जाम्स हैं, वो फीस अवेलेबल उसमें इंक्लूडेड नहीं होती है। अगर कोई भी आप प्रैक्टिस एग्जाम लेना चाहते हैं यूएसएमएलई का या अमेरिका कनाडा का या इंडिया का कोई भी एग्जाम, आप थर्ड पार्टी, सिर्फ एग्जाम की फीस अवेलेबल नहीं है, बाकी प्रिपरेशन फीस वगैरह आपकी सब इसमें इंक्लूडेड होती है। Thank you, sir. Next question is, what approximate percentage students are practicing in Contact General Hospital or successfully pass the USMLE exam? सर देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, इट्स एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू वांट टू प्रैक्टिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि इंडिया से भी स्टूडेंट्स आते हैं कि भाई हम इंडिया वापस जाना चाहते हैं, तो इंडिया वापस जाना चाहते हैं, वो वापस इसमें अपने एनबीएमई का एग्जाम्स लिखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। बट लेकिन अब सभी को जो नई रेगुलेशंस आ रही हैं उसके हिसाब से सबको यूएसएमएलई का एग्जाम लिखना होगा इस साल से। और कनाडा के बच्चे थे, जैसे पहले कनाडा के स्टूडेंट्स आते थे, तो कनाडा में वो प्रैक्टिस करना चाहते थे तो वो कनाडा में चले गए, तो कनाडा के एग्जाम्स उनको लिखने पड़ते थे। यूएसएमएलई का जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है वो है 94%, बट पिछले 2 सालों से जो परसेंटेज आया है, जिस भी स्टूडेंट ने चाहा है कि वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं और यहाँ पे उन्होंने एग्जाम लिख के पास किया है, उन्हें 100% स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे पीजी मिला है, रेजिडेंसी मिला है। और ये रेजिडेंसी जो है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे पीजी आपको यहाँ पे ही करना है, आप यहाँ पे जो हजारों हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे लगभग 30,000 उसके रेजिडेंसी स्पॉट्स हैं स्पेशलाइजेशन के, आप वहाँ पे अमेरिका में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद, और किसी भी स्पेशलिटी में। ऐसा नहीं है कि आपको फैमिली मेडिसिन बनना, फिजिशियन बनना है तो आप सिर्फ यहीं पर रहेंगे, और आप साइकियाट्रिस्ट बनना चाहते हैं या फिर ऑर्थोपेडिक्स या सर्जन बनना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं अमेरिका में जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं आप जब आप यहाँ से फिनिश कर लेंगे अपनी डिग्री। So next question is there. What are the opportunities in especially research further for students? देखिए, रिसर्च की ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। जितनी रिसर्च में बच्चे रहते हुए पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो बेसिक साइंसेज में है, कुरासाओ में है, या फिर वो यहाँ पर क्या नाम है, मिशिगन में आते हैं, अमेरिका में आते हैं, यहाँ पे भी इनको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यहाँ पे डॉक्टर फर्ग्यूसन है, वो है गेस्ट है, वो एक रिसर्च की रोटेशन भी करवाते हैं, इसमें कई सारी चीजें मिलती हैं। और मेरे ख्याल से इसमें लास्ट ईयर जो है बच्चों के पब्लिकेशन में पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन में मेडिकल के नाम आते
और के बाद आप यहाँ पे बहुत रिसर्च होती है। अमेरिका में मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप चाहें तो आप पूरी जिंदगी रिसर्च कर सकते हैं और उसका रिसर्च फिर भी खत्म नहीं होगी। After necessary to clear USMLE step 1, what can student is USMLE? देखिए USMLE पास कर all they have to do is कि वो जो एक रिव्यू कोर्स की एक बुक आती है, रिव्यू एवरीथिंग एंड टेक द सेल्फ असेसमेंट, जो कि एक USMLE जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं जिससे दैट इंश्योर्स कि अगर आपके एग्जाम्स के जो स्कोर्स हैं उसमें अगर उस रेंज में आ रहे हैं तो आप उसमें पास करो। और यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं, यहाँ पे जो गाइडेंस है बच्चों को बताया जाता है कि किस तरीके से आपको तैयार करना है। जैसे आप अपना MD4 फिनिश कर लेते हो 4th सेमेस्टर, जो आपने 2.5 साल बताया पहला, कि किस तरीके से आपको तैयार करना है, स्टेप बाय स्टेप उनको गाइडेंस होती है कि उनको कब उनको सेल्फ असेस और जब मैं यहाँ पर ही पला बड़ा हूँ, खैर मैं यहाँ से 8-10 साल से यहाँ पर हूँ। जब हमारी कभी भी तबीयत खराब होती है तो आप वहाँ पर एक हॉस्पिटल में जाते हैं, आप कौन से डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? जो इंडिया में जिसने MD किया है या फिर जिसने लिखा होगा MD अमेरिका से किया है या UK से किया है, आप किसके पास जाना प्रेफर करेंगे? और डेफिनेटली मैंने जो भी ट्रेंड देखा है कि हम सब लोग जो है उसमें जाना चाहते हैं जिसने कि अमेरिका से किया है, हम नहीं चाहते जिसने कि इंडिया से किया है। तो इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस, तो आप समझ सकते हैं कि जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी फर्क है यहाँ पर, जिसमें कि किस अच्छे तरीके से ट्रेनिंग है। और अभी इतने जो जितने टेक्निक्स हैं या जितने भी रिफाइंड मशीन्स हैं वो इंडिया में हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, जो कि यहाँ पर बड़ी कॉमनली अवेलेबल होती है, जिससे कि बच्चों की जो ट्रेनिंग है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के साथ अवेलेबल है और बच्चे उस एटमॉस्फेयर में सीखते हैं जिसमें कि उनको पता है कि सारी चीजें किस तरीके से अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है, किस तरीके से डायग्नोस करना है, इमीडिएटली किस तरीके से वहां तक उस डायग्नोसिस तक पहुंचकर ट्रीटमेंट करना है। तो ये सब चीजें जो है थोड़ी फर्क है। एंड आई नो कि आपको वहां पे थोड़ा सा, जब आप देखेंगे अपने एक्सपीरियंस में भी, हम सभी देखते हैं वहां पे इंडिया में कि इट्स वेरी ऑब्वियस एंड नेचुरल कि हम वहां पे अमेरिका ट्रेन डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा आई डोंट नो फॉर व्हाटएवर रीजन कि हमने सुना है और जिस लगे से हमने देखा है कि किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, बात करते हैं, इट्स डिफरेंट। Thank you, sir. So next question is NEET compulsory to take admission? And also please explain regarding the fee structure. देखिए नीट जो है वो कंपलसरी नहीं है। नीट कंपलसरी तब है जबकि आप MBBS के बाद अगर स्टूडेंट इंडिया आके MCI लिखना चाहता है और वो पास करना चाहता है और इंडिया में PG करना चाहता है या प्रैक्टिस करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि सीधा यहाँ पे आता है और अमेरिका में PG करना और अमेरिका में सेटल होना है, अमेरिका में या कनाडा में, अमेरिका के जो एग्जाम्स हैं, जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, अगर यहाँ पे आप PG कर लेते हैं और यहाँ पे आप रेजिडेंट और जो फिजिशियन है यहाँ पर, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं उससे आप एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। आपको कोई एग्जाम नहीं लिखना पड़ता है दूसरी कंट्री का। ऑल यू हैव टू डू इज कि अपना यहाँ का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है वो दिखा के, और दूसरे जो जितने भी आपको पेपर वर्क करने पड़ते हैं, कॉपी ऑफ डिप्लोमा है या ट्रांसक्रिप्ट है या जितने भी आपको बोर्ड सर्टिफिकेशन है, उन सब पेपर्स के आधार पर वो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने दिया जाता है। अभी कनाडा में भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं कनाडा में। अगर आपने अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं कोई डॉक्टर और कनाडा मूव करना चाहते हैं, तो उनको वहाँ पे मिनिमम टाइम होता है कि 6 महीने उनको जो किसी, और अगेन उनका एक्सपीरियंस भी है। और दूसरी चीज की किस प्रोविंस में जा रहे हैं, फिर अगर स्टेट रेगुलेशन आ जाती है। स्टेट रेगुलेशन में कई सारे
लोग कहते हैं कि भाई हमें अगर अमेरिका में कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो हमें वहाँ पे कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कहते हैं आप 6 महीने वहाँ पे आप एक सुपरविजन में करें और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी आफ्टर पासिंग यूएसएमएल स्टेप्स, जहाँ पे अगर यूएसए में अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो। Thank you. Sir, my question is to Dr. Umesh Pandey, sir. So why you choose that residency and what was the subject? Oh, why did I choose? Hello, sir. This is Umesh. So the question is, why did I choose residence in US? Yes, sir. Because US is one of the best countries to practice, to get trained in. Residency is a time to get trained, to learn the best, to get exposure to the best of the best. Yeah, the research is the best here. All the tools that we use to help the patients are the best here, most up to date. And experience from US can help enhance my experience, enhance my my skills. Tomorrow, if I want to go back to India, with the experience from India, I can always, with the experience from US, I can always do amazing in India as well. So that was my prime reason why did I want to do residence in US. And what was the second question, sir? Regarding a specialization, which subject? Right, currently, I'm in family medicine residency program. Thank you, doctor. Yes, sir. Next question is for Umesh sir. Umesh sir, please speak about your overall journey, right from UG to PG, your experience. Because many students are asking us, they want to actually meet the student who is actually doing residency there. आप थोड़ा बात करिए ना इसके बारे में, कैसा रहा आपका ओवरऑल जर्नी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया से करीबियन जाना. By the way, my name is also Ram Pandey. Oh, okay. Yes, तो मैं बॉम्बे से हूँ. I was raised in Mumbai. I'm from Akola. Yeah. Oh, okay. तो हाँ, तो आप we can relate to each other. इंडिया से पढ़ाई लिखाई किया मैंने, फिर was fortunate to get admission in St. Martin's University, and from there I finished my basic sciences on the island, and then I finished my step 1 exam, USMLE step 1 exam pass करने के बाद, then I came to US to start my rotations, the 2 years of clinical rotations in US in Pontiac General Hospital, and also I was given a chance to follow some doctors in their clinics here. So I had enormous amount of rotation, great experience. उसके बाद then I wrote my step 2 CK, CS, and then got ECFMG certified, and then I applied for residency. And I was very fortunate. I got interviewed at Pontiac General Hospital, and then luckily I got accepted here. And I started my residency. It's been almost a year is done. Within a couple of months, I'll be starting 2nd year of residency. So the residency program here is 3 years. And after you finish your residency, then you can be licensed. You can have the full complete license to practice anywhere in US. And at the same time, you want to do fellowship. There are many options. After doing a residency in family medicine, you can do fellowship in geriatric, in sports medicine. And so there are many things. Right now, family medicine residency gives you options to further branch out into several specializations. So the experience has been amazing. St. Martin's University gave me a great platform to decide and to succeed so far. Thank you, Umesh ji. Thank you. Dr. Pandey, मैं आपसे cannot. Yeah. Now it's good. Yeah. I think your voice. Yeah. Can you hear me now? Yeah. Yes. Okay. मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं अपने सेंट मार्टिन स्टूडेंट्स के, ऑफ कोर्स आपने भी बेसिक साइंस वहाँ से करी और उसके बाद फिर क्लिनिकल रोटेशंस यहाँ पे करी, एंड देन यू गॉट एक्सेप्टेड इन रेजिडेंसी. अब आप प्रेजेंट डॉक्टर बन चुके हैं यहाँ पर. तो जो अब मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं,
उनके लिए एज अ मेडिकल स्टूडेंट क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपना खुद का हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी का। तो जो अगर मान लीजिए कि आप आई एम श्योर कि आपके फ्रेंड्स होंगे या जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स आप जानते हैं जिस फील्ड में हैं, क्या ऐसी बेनिफिट है जो कि अपना हॉस्पिटल होने से मेडिकल स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिली है? क्योंकि हमारा स्कूल एक ऐसी यूनिवर्सिटी है दुनिया में जिसका खुद का हॉस्पिटल है अमेरिका में। ऐसा अभी तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में नहीं सुना, पिछले 15-16 साल के एक्सपीरियंस में। आई डोंट नो कि आपने सुना है कि नहीं सुना, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? नहीं, उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे आप अगर सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपको एक तो पहला कॉन्फिडेंस ये रहता है कि हमारे स्कूल का हॉस्पिटल है यूएस में। और दूसरी, जब यहाँ पर मैं आया था बेसिक साइंसेस कंप्लीट करने के बाद, तो मुझे बहुत हेल्प मिला था कि द स्टाफ जो सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी के स्टाफ अवेलेबल रहते हैं व्हाइल डूइंग माय रोटेशंस एट द हॉस्पिटल हियर, और अपना स्कूल का खुद का हॉस्पिटल है, तो इसलिए I felt confident. I had options. Yeah, I had options to schedule my rotations accordingly and to learn more and more. और अपना खुद का हॉस्पिटल होने की वजह से जब रोटेशन हम कर रहे थे, तो एक अच्छा महसूस करते हैं कि अपना खुद का हॉस्पिटल है, यहाँ पर सीखने को मिलता है और बहुत हेल्प मिलता है। कई बार तो हमने रोटेशन बाहर भी किया है, स्कूल ने हमें हेल्प किया। जो डॉक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उनके अपने क्लिनिक्स भी हैं, तो वहाँ भी जाने का मौका मिलता है। तो एक स्पेशल कंसिडरेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, अपना खुद का लगता है खुद का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर एक फ्रीडम रहेगा कि कुछ रिसर्च करना है, कुछ और किसी को फॉलो करना है, और कुछ सीखना है, तो एक फ्रीडम रहता है वो उस चीज का। राइट, थैंक यू सर। तो अगेन हम बात कर रहे थे, देखिए राम सर, कि जो अपने स्टूडेंट्स को जो कंफर्ट मिलता है, जो फ्रीडम मिलता है, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर आते भी हैं दूसरे मेडिकल स्कूल्स में जो पढ़ते हैं, वो सिर्फ आते हैं और ऑब्जर्व करके चले जाते हैं। उनके लिए जो है ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उनमें कि हमारा यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल है, हम उसमें खुद में जाके और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यही एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस है जिसमें कि आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो टू बिकम अ फिजिशियन। आप यू आर वेरी क्लोज टू प्रैक्टिसिंग, जिसमें कि आप आगे पेशेंट से बात करना शुरू करेंगे और उसके बाद करें इंडिपेंडेंटली करना, और वर्सेस जब आप एक सीख रहे हैं, बहुत फर्क है उसमें। और काफी सारे यहाँ पे आई एम श्योर कि यहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस भी होंगे उसमें कॉल में, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कि जब हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद जब आके हम रियल वर्ल्ड में जाके हम आके प्रैक्टिस करते हैं और करते हैं, इसमें बहुत फर्क है। तो अगर वही उसकी ट्रेनिंग जो है उसमें और ज्यादा एंगेज होना शुरू कर दें स्टूडेंट्स जो है, और उनको और ज्यादा प्रैक्टिकल करने लग जाएं, उसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले और उसमें और ज्यादा उनको पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटीज मिले, तो वो हेजिटेशन जो है वो बहुत कम हो जाती है। और हेजिटेशन कम होने के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ आगे वो एग्जाम पास करना है या किसी से आगे इंटरेक्ट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए। उसकी पर्सनालिटी, अगेन फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली चीजें भी, दैट्स हाउ दे डेवलप देयर पर्सनालिटी एज अ फिजिशियन। उमेश सर, एक और सही बात कहा ललित सर आपने, थैंक यू। उमेश सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट हैं जो दे आर इंटरेस्टेड इन पीजी आल्सो। तो एक सवाल उनके मन में आता है कि क्या वो यूएसएमएलई क्रैक कर पाएंगे, बिकॉज यूएसएमएलई के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा डर है। तो आपने खुद यूएसएमएलई दिया हुआ है, क्रैक किया हुआ है, और एक्चुअली यूनिवर्सिटी में कुरासाओ में आपको कैसा हेल्प मिला ओवरऑल, मतलब क्या सपोर्ट मिलता है स्टूडेंट को यूएसएमएलई प्रिपरेशन में, थोड़ा उसके बारे में बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद एग्जांपल हूँ। मैंने यूएसएमएलई पास किया है स्टेप 1 2 CKCS, और सबसे अच्छी बात यह है कि सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, वो सिलेबस का पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि आपको यूएसएमएलई एग्जाम के लिए तैयार करता है। और यूएसएमएलई मेरा जो बेसिक साइंसेस हो गया था क्यूरासाओ में, उसके बाद हमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर ट्रेनिंग भी मिलता है कि प्रैक्टिस करने का, कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे यूएसएमएलई में, उसकी तैयारी करते हैं। एनबीएमई एग्जाम्स लिखते हैं हम, जो कि इज आल्सो बाय द यूएसएमएलई। तो वो सारे जो स्ट्रक्चर्स, जो पूरा सिलेबस है, स्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग का जो पूरा प्रोसेस है, इट हेल्प्स अस एग्जैक्टली टू प्रिपेयर फॉर द स्टेप 1। मेरा स्टेप 1 का जो एग्जाम का प्रिपरेशन था, इट वाज
after passing the basic sciences, I was so comfortable to prepare for the step 1. मुझे मैंने 3-4 महीने में एग्जाम की तैयारी कर ली थी, और पूरा credit I would give to the syllabus that we had at the St. Martin's University, and definitely I have to put in my effort. This exam is like any MBBS medical exam. Exam. It's a tough, it's a difficult exam. I will not say कि ये easy exam है, कोई भी इसको आएगा और लिख के पास हो सकता है. पढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन जो प्लेटफॉर्म मिलता है सेंट मार्टिन यूनिवर्सिटी से बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है. वो प्लेटफॉर्म आपको तैयार करता है, उसके बाद आपका अगर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन है, तो यू कैन प्रैक्टिस लाइक 3-4 मंथ्स का क्वेश्चंस होते हैं पूरे. यू कैन रजिस्टर फॉर सम एग्जाम क्वेश्चंस, एंड वो आप प्रैक्टिस करते रहिए और एकदम डिलिजेंटली पढ़ते रहिए, तो आप आराम से पास कर सकते हैं एग्जाम. थैंक यू सर. थैंक यू सर. या अभी और किसी को कुछ सवाल पूछना है? अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड ऑल, मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर. किसी को कुछ भी अगर सवाल पूछना है, क्योंकि अभी एक लास्ट सवाल रहेगा, हमें अभी टाइम हो गया है, वी नीड टू जस्ट वाइंड अप नाउ. किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. हाँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. जी बिल्कुल. हाँ, ये इसकी यूएसएमएल के क्रैक करने के संबंध में है. एक तो पहले जो 2.5 साल का बेसिक साइंस का इनका कंप्लीट होता है, 2.5 साल या 6 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर है ना, बेसिक सिलेबस होता है. उसमें लेक्चर्स कितने परसेंट लेक्चर लोग कंप्लीट करते हैं, टीचिंग करते हैं एक्चुअली, या सेल्फ स्टडी करते हैं, इसमें ये पूछना है. और दूसरी बात, यूएसएमएल क्रैक करने का परसेंटेज हो सकता है बच्चों का. ये 2 क्वेश्चन है. ललित सर, आप इसका जवाब. जी, ऐसा है सर, जो बच्चों का जो सेल्फ स्टडी है, और आप आर यू अ डॉक्टर योरसेल्फ, और आप क्या करते हैं, इफ आई मे आस्क सर? मैं एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजिस्ट. अच्छा, ठीक है. एंटोमोलॉजिस्ट, तो देखिए, एग्रीकल्चर ऐसा है. एंटोमोलॉजिस्ट. यस. अच्छा, ठीक है. तो ऐसा है सर कि जो डॉक्टर्स की जो पढ़ाई है, लेक्चर्स के बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी. और कोई डॉक्टर का कोई भी प्रोफेशनल स्टडीज है, आप क्लास में आके आप ये नहीं कह सकते कि प्रोफेसर ने मुझे पढ़ा दिया और उसके बाद मैं आगे डॉक्टर बन जाऊंगा, जिंदगी में मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो सेल्फ स्टडी तो बच्चों को करनी पड़ती है, और अटेंडेंस जो है उस हिसाब से 80% जो है अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है. कि 80% बच्चे अगर आप अटेंडेंस उसमें नहीं करते हैं, तो उन्हें एग्जाम नहीं लेने दिया जाता है. और वहाँ पे एक्सेप्शंस हैं कि अगर किसी की तबीयत खराब है, मेडिकल रीजन से, वो बात अलग है. बट इन अ नॉर्मल केस हर बच्चे को क्लास अटेंड करना जरूरी है. और उसके बाद जो है सेल्फ स्टडी उनको करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ एक क्विजेस भी होती हैं, असाइनमेंट्स भी होते हैं, उनको काम दिया जाता है क्लासेस के बाद. तो सेल्फ स्टडी अगेन इज इम्पोर्टेंट. यू कैन नॉट become a doctor with just by going to the classes, और उसके बाद कि भाई मेरे को प्रोफेसर ने मुझे पढ़ा दिया और डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं सारे एग्जाम्स पास कर दूंगा, which is not gonna happen. और मेरा ये क्वेश्चन ये था, सॉरी ललित जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि कितना परसेंट कोर्स लेक्चरर कंप्लीट करते हैं, एक आउट ऑफ 100 कितना परसेंट लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं? सर वो अपनी कोशिश करते हैं कि वो अपनी वो पूरी कोशिश प्रोफेसर की रहती है कि वो 100% कंप्लीट करे. बट लेकिन मेडिसिन में मटेरियल इतना ज्यादा होता है कि अब सारा का सारा अगर जो सिंपल मटेरियल है, तो वो सिंपल मटेरियल जो है वो बच्चों के लिए छोड़ते हैं कि आप वो पढ़ के आए और अगले दिन पूछे उसमें से क्या सवाल है उसके ऊपर. बट वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जो है जो वो पढ़ाते हैं, टफ कॉन्सेप्ट्स हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट जिनके की कि प्रोफेसर को खुद ही पढ़ाने पड़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जो है वो इजी मटेरियल वो कवर करते हैं और उसको बच्चों को बताते हैं कि भाई आपको ये पढ़ के आना है और नेक्स्ट डे हम इस पे बात करेंगे या इसको पढ़ाएंगे, जिसमें कि आपका ये सारा कवर होना चाहिए. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ स्टडी एंड लाइव लेक्चर्स. और दूसरा इसके सब्सिक्वेंट एक क्वेश्चन है कि क्या लेक्चर्स जो लेक्चर्स है या प्रोफेसर है उनको कंपलसरी है कि इतना जो सिलेबस है ये सेमेस्टर का, ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर कोर्स का ये इतना ट्यूट करना ही है और टॉट करना ही है बच्चों को, ऐसा कुछ कंपल्सन है? सर बिल्कुल है ऐसा. और उनका जो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बड़ा छोटा सा गोल है कि कंपलसरी करना है, ये एक
हाई स्कूल में देखिए जैसे होता है कि जैसे 10वीं 12वीं में होता है, हम पढ़े हैं वहाँ पे भी, मैं भी इंडिया में पढ़ा हूँ, कि प्रिंसिपल का जो है बड़ा वहाँ पे जोर रहता है कि बच्चों को जो है तुम्हें क्लास सारा का सारा सिलेबस फिनिश करना है, सारा सिलेबस फिनिश करना है। आगे वो बच्चा क्या पास कर रहा है, टेस्ट में सारे में आंसर आ जाते हैं। बोर्ड के एग्जाम की मैं बात फर्क कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है हर एक डॉक्टर का, जो प्रोफेसर का जो गोल है वो ये है कि उन्हें यूएसएमएलई के लिए तैयार करना है। तो वो जो प्रिपेयर करा रहे हैं बच्चों को लोग, वो बहुत आगे सोचकर उसके लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। वो सिर्फ उस सब्जेक्ट मटेरियल के लिए नहीं कवर करवा रहे हैं कि उसको बच्चे को मुझे 70% कवर करवाना है, 30% बच्चे अपने आप कर सकते हैं, 30% अपना सेल्फ स्टडी। और देखिए ये 70-30% का जो रेशियो है ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे भी। अगर मान लीजिए कि उसमें बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में बच्चों को ज्यादा पूछना पड़ता है, समझना पड़ता है। फिजियोलॉजी है, अगेन इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सिस्टम्स वर्क। और एनाटॉमी है, इसमें मेमोराइजेशन ज्यादा है। तो डिपेंड करता है कि एक तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और दूसरा है कि हर प्रोफेसर का गोल जो है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है कि उनको प्रोफेसर को मटेरियल से ज्यादा कवर करवाने से ज्यादा इनको है कि यूएसएमएलई के लिए तैयार कैसे करवाना है, हमें इनको एक इंटरनेशनल लेवल के लिए इनको कैसे तैयार करवाना है कि कहीं पे भी जाके अगर यूएसएमएलई का एग्जाम तैयार करना है, चाहे कनाडा का करना है, चाहे इंडिया का करना है, वो बच्चे वो पास कर सकें। और दूसरा आपने पूछा कि वहाँ पे कि यूएसएमएलई के लिए बच्चे कितने जाते हैं, तैयार करते हैं, पास करते हैं। यूएसएमएलई के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे ही ये 2.5 साल वहाँ पे फिनिश करते हैं तो इनको एक बताया जाता है कि जो बच्चे यूएस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं आगे क्या करना है बेसिकली। तो उसके बाद इनका एक एग्जिट एग्जाम होता है जिसको कहते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स का एक एग्जाम होता है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव बेसिक साइंसेस, जिसमें कि जितना भी इन्होंने पढ़ा होता है 2.5 साल में वो उसके बेसिस पे सारा एग्जाम होता है, जो कि दैट प्रीटी मच कवर्स योर फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन। उसके बेसिस पे फिर बताया जाता है कि आपको अब सेल्फ असेसमेंट लिखना है। सेल्फ असेसमेंट में आपको इतना स्कोर करना है, फिर उसके बाद 2 सेल्फ असेसमेंट लिखना है, फिर आगे आपको एनबीएमई प्रोमेट्रिक का एग्जाम लिखना है, उसके साथ फिर आपको यूएसएमएलई का एग्जाम। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग अलग इस पे सब्जेक्ट्स पे ये एग्जाम है, ये एक ही चीज है जिसपे कि आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एग्जाम्स आपके बार बार इसलिए होते हैं जिसमें कि आपको ये सारी नॉलेज जो है आपकी फ्रेश रहे आपके दिमाग में, और उसके बाद आप एक इम्प्लीमेंट स्टेज पे आ जाते हैं जिसमें कि आपको अब इम्प्लीमेंट करनी है नॉलेज। पहले आपने छोटे छोटे सब्जेक्ट पढ़े, फिर उसके बाद आपको उसमें किस तरीके से नॉलेज को अप्लाई करना है, फिर उसके बाद अब एक बड़े लेवल पे एज अ डॉक्टर कैसे सोचना है उसको। अब जब डॉक्टर्स को कैसे सोचना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उन क्वेश्चंस को, उन सिचुएशंस को सॉल्व कैसे करना है। तो इसका एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, जो कि स्टेप बाय स्टेप चलता है। इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। और उसमें से जितने भी बच्चे लेना चाहते हैं, सक्सेस रेट कितना है? सक्सेस रेट कितना है उसका? सॉरी, सक्सेस रेट? हाँ वही मैं बता रहा था आपको, जितने भी उसमें बच्चे जो हैं आगे एनबीएमई का एग्जाम पास करते हैं, उसमें 94% बच्चे जो हैं हमारा 2017 तक था, और अब पिछले साल में और 2018 और 19 में, इनफैक्ट 2020 में भी जितने भी बच्चों ने एनबीएमई का वो पास किया है अमेरिका के लिए जाने के लिए, उसमें 100% बच्चों ने वो इस साल पास किया है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड जी। थैंक यू ललित जी, थैंक यू। Sure sir. Thank you, sir. If anybody is having question, you can ask. Hello everyone. Hello, yes, please continue. Yeah, first of all, thank you Kamendra sir for inviting me to this informative session. And मैं यहाँ पे कोई सवाल पूछने नहीं, बट अपना फीडबैक देने के लिए आया हूँ। बिफोर ज्वाइनिंग एसएमयू मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया है, बट ट्रस्ट में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं एंड बहुत सारा नेगेटिव फीडबैक मिला है। बट आफ्टर ज्वाइनिंग एसएमयू रियली अब तक कोई भी कंप्लेन नहीं है, बच्चे बहुत खुश हैं और हमें भी बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं। सो क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड आता है रिकग्निशन, एफिलिएशंस, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको सारा एसएमयू में मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है। टोटली आप स्टूडेंट्स जो भी है, आप इस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कामेंद्र सर की बैंगलोर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। तो मेरे कर्नाटका स्टूडेंट्स जो है, महाराष्ट्र में तो काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन कर्नाटका में भी अभी काफ़ी इंक्वायरीज आने लगे हैं। तो यूनिवर्सिटी में जो भी, चाहे फूड हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, स्टूडेंट्स वापस आए हैं बिकॉज ऑफ कोविड, बट वहाँ रेगुलर क्लासेस उनकी चल रही हैं। दे हैव नो कंप्लेंट्स। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
Thank you, Shay. Thank you. Thanks for your feedback. Yes. Anybody? कामेंद्र सर या कामेंद्र सर आज धनिषा जयस्वाल जी अकोल्याची स्टुडंट आलेली आहे. हॅलो, धनिषा आलेली आहे सर, आज अटेंड करत आहे. शी इज फ्रॉम अकोला. धनिषा, यू आर देयर? यस सर. धनिषा, धनिषा थोड़ा बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज आप अकोला से हो और अकोला से आज के पार्टिसिपेंट्स ज्यादातर अकोला से है, तो ओवरऑल आपका फीडबैक कैसा रहा, आपका ओवरऑल जर्नी, स्पेशली सर्विस अकोला ऑफिस से आपको कैसा सर्विस रहा, मुंबई ऑफिस से आपको कैसा सपोर्ट मिला, ओवरऑल ये जो प्रोसेस हमने कंप्लीट किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइएगा. जी सर. सर पहली बात कि मैंने तो नीट रिपीट किया था, सो आई वाज थोड़ा सा ऐसा मूड था कि मैं पता नहीं क्या होगा, कैसे नीट क्रैक होगा वगैरह, बट एक डिटर्मिनेशन थी कि एमबीबीएस करना ही है. सो मुझे इंटरवाइड एजुकेशन की तरफ से कैसा ये सब पता चला कि एक यूनिवर्सिटी है सेंट मार्टिनियस यूनिवर्सिटी, जो यूएस जाने का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है, जहाँ से मीन्स एक जो बहुत अच्छा क्वालिटी डॉक्टर कैसे बनते हैं उसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी है. सो ये जो प्लेटफॉर्म था बहुत अच्छा था. तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि कैसे मैं अप्रोच हुई, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे उनके कॉन्फ्रेंसेस हुए, तो यहाँ पे जो भी उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए उनकी वजह से मुझे पता चला था. फिर यहाँ की सर्विसेज मुझे यहाँ से अकोला हेड ऑफिस से काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब सप्लाई कर जो मेरे यहाँ से पहुँचाए गए सारे प्रोसेसेस हुए हैं, उसमें बहुत हेल्प मिली है. मुंबई ऑफिस की तरफ से मुझे कोई भी डाउट्स जो भी थे मेरे तुरंत सॉल्व हो जाते थे. काफ़ी अच्छा मुझे मतलब क्विक एक्सेस मिला था हर एक इसमें. इवन मेरे वीजा वगैरह के लिए जो एम्बेसी ऑफिस में तक जाने की मुझे सारी हेल्प प्रोवाइड की थी. एक बहुत सिचुएशन एक मेरे सामने ऐसी आई थी कि जिस दिन मुझे मेरी फ्लाइट थी तब मुझे उसके 1-2 दिन पहले मुझे करेंसी एक्सचेंज का बहुत प्रॉब्लम आया था. तो ऑन टाइम मुझे नहीं मिल रहा था, बट मुंबई ऑफिस में मुझे तुरंत ऑन टाइम कामेंद्र सर ने उसका मुझे प्रोवाइड किया. उन्होंने ऑन टाइम मुझे सब अवेलेबल करके दिया. सो बहुत अच्छी हेल्प सर्विस है. इवन हमें जब कोविड के टाइम पे वापस आना था तो हमें सडन डिसीजंस लेने पड़े, तब भी हमारी सारी टिकट्स वगैरह सब अवेलेबल करा के दी. दोनों ऑफिस की तरफ से मुझे अकोला ऑफिस एंड मुंबई के ऑफिस दोनों की तरफ से काफ़ी हेल्प मिली है. मतलब ऑन टाइम ऐसे जब सिचुएशन आ जाती है कि हम वहाँ पे अकेले हैं, हमारे पेरेंट्स इधर है, पूरी फैमिली इधर है, एंड हम अकेले हैं वहाँ पे, सिर्फ हम स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स बोले तो हम इतने बड़े नहीं है कि हम सारे डिसीजंस ले सके. सो दोनों ऑफिस की तरफ से मेरे फैमिली को काफ़ी सपोर्ट मिला. दे हेल्प मीन्स फाइनेंशियली भी कि कैसे ऑन टाइम कैसे सारे प्रोविजंस करे, वो भी काफ़ी हेल्प मिली है. एंड जो भी प्रोसेस हुई है एडमिशन की उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कहीं पे कोई भी डाउट्स नहीं थे, एंड इफ कोई डाउट्स है तो वो तुरंत सॉल्व हो जाते थे. तो बहुत अच्छी सर्विस है. थँक यू धनिषा, थँक यू. हा, मला एक प्रश्न विचारायचा दानिशाला. हाँ सर. हा, मला हे विचारायचं बेटा, तुला आतापर्यंतचा जो तुझा आता 6-8 महिने वर्ष आता कंप्लीट होत आहे, तर तुझा तिथलं एज्युकेशनचा किंवा टीचिंगचा किंवा तुमच्या लेक्चर लोकांचा कसं काय अनुभव आहे, आणि तू कसं पाहशील ते म्हणजे इंडिया सोबत कसं कम्पेअर करशील? सर अभी यहाँ पे जो हमें पहली बात मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे जो मेरे काफी फ्रेंड्स जो यहाँ पे मेडिसिन कर रहे हैं उनको एक सब्जेक्ट वो पूरा 1 साल पढ़ते हैं, जो हम काफी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं. और हमारे यहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, हमको रेगुलर अटेंड करना कंपलसरी होता है. जब तक तुम्हारे पास कोई जेन्युइन रीजन ना हो कि तुम सीरियसली बहुत ज्यादा बीमार हो तो ही तुम ले सकते हो. इफ छोटा सा हेडेक हो या फिर नहीं हो रहा है तुमसे, इसलिए सिर्फ बंक करना है, इसलिए तो हम वैसा नहीं कर सकते. हमें सारी क्लासेस
ही पड़ती है। उसके बाद जो हमारे एजुकेशन, अगर हम पढ़ाई का पैटर्न देखें तो हमें पहले प्रोफेसर इस तरह एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजें, बहुत डिटेल में हर चीज पढ़ाई जाती है। एनाटॉमी में अगर हम देखें तो हमें बोन्स, मसल्स, उसके ओरिजिन, ये सब बताया जाता है। उसके बाद हमारा एनाटॉमी लैब में हमें जो पढ़ाया जाता है तो कैडावर्स पे या डेड बॉडीज पे हमें वो सब बताया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता है, बट बच्चों से ये पूछा भी जाता है कि आपको कितना समझा है। हमारी ऐसी ओरली हमें नॉट एग्जाम वे को छोड़ के भी पर्सनली सारे प्रोफेसर हमें पूछते कि ये चीज बताइए कि आपको कैसी समझी है, किस पैटर्न में समझी है। तो इवन प्रोफेसर्स वगैरह बहुत फ्रेंडली है, मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो पढ़ाई से ओरिएंटेड है, अगर तुम्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो हम वो भी शेयर कर सकते हैं प्रोफेसर्स के साथ। तो वो बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं। उसके बाद एक सपोज एक टॉपिक हो चुका है हमारा, तो उसके बाद वो हमारी एक छोटी सी क्विज रखते हैं। तो उस पे सिर्फ वो एमसीक्यूज पैटर्न होती है, क्योंकि हमारा बेसिक मोटो जो है वो यूएसएमएलई का होता है। सो यूएसएमएलई क्रैक करने के लिए हमें मैक्सिमम क्लिनिकल बेस्ड चीजें होती है, लाइक पूरी थियोरी नहीं, जैसे इंडिया में हमें सब चीज थियोरेटिकली लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पैटर्न्स आते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको एक सिचुएशन दी जाती है कि ऐसा ऐसा पेशेंट आया है आपके पास, उसके ये सिम्टम्स है, ये चीजें हैं, तो हमें उस वे से पढ़ाई करनी पड़ती है। जो कि इंडिया में हमें कैसे कि एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब ये चीज, तो उसके ऊपर पूरा पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखना पड़ता है। तो वहां पे ऐसा है कि आपको केस दिया जाता है, आपको उसको एनालाइज करना पड़ता है। Okay, thank you Danisha, thank you. Anybody is having any question? किसी को कुछ अगर पूछना है? Last question. Okay. Amol sir, yeah, conclude the session now. We don't. Yes. Yes. Thank you very much. Myself Amol from InterAdvice Vashi branch. So today's session was excellent. I thank Dr. Bharata, Mr. Kamendra Dahat, and all the people involved, all the participants, all the dignitaries from the university side, Dr. Lalit sir, as usual. Okay. So everything was in such a very nice manner. I'm very sure and confident that today's session, of course, with the efforts of Pandey sir as well, today's session was very informative, very interactive, and all your doubts, whether it be safety, about the cracking the USMLE, or about the pattern of education, everything will be clear today to all the students so that they can embark on the journey. With this, I wish to thank all the participants as well as all the panel members and all the people involved to make this session a truly successful one. So today, we at the back of our mind are very clear about St. Martin's University, about the USMLE and all the pattern of education. Thank you very much everyone for your kind time and attention. Thank you very much. Special thanks to Priyam Sharma madam. She has given her valuable time to us. Yes, definitely a special thanks to you, ma'am. I'm so sorry for that. I just not at all. Thanks for arranging this, Mr. Dahat. And if anybody any questions, please feel free to ask Mr. Dahat and his team, or write to the university and we will answer the questions. Thank you. And with this, I will leave now. Thanks a lot. Thank you. Bye-bye.